Subah Bakhair, good morning to everyone. To start with, why I have selected this topic is obviously quality assessments जो है वो blood banking में it's something which is a blind spot in a way कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं होती और clarity नहीं होती. So that's why I chose this topic so that I can share a structured sort of approach and availability of the tools in order to ensure blood banking में quality को ensure करने के लिए. Okay. जो blood bank में we are dealing with both kind of things, that is the products as well as the services. तो जो products हैं उसकी safety और efficacy are important and obviously patient को हम serve कर रहे होते हैं by virtue of both the testing as well as the product which are issued to the patient. अब ये जो safety and efficacy and services in blood banking and transfusion medicine is influenced by so many things. और वो क्या क्या influences होते हैं और क्या क्या considerations होती हैं और क्या क्या उसमें जो है वो factors जो हैं वो play कर रहे होते हैं, उनमें जो contribute कर रही चीजें होती हैं वो safety of donor and recipient himself or herself, regulation around the quality of blood banking, evidence क्या emerge कर रहा है, evidence क्या available है, and what are the current standard of care practices, then academic requirements, then precautionary principle जिसको कि हम एक दफा और separately किसी वक्त में बात करेंगे. This is something very unique to a blood banking and blood transfusion safety जिसकी मिसाल बाकी sciences में या बाकी disciplines में उस तरह से नहीं मिलती. And this is heavily dependent on the finances and the costings. So ये सारे factors influence कर रहे होते हैं safety and efficacy of blood products and blood transfusion services. तो उसके लिए इन सारी considerations को balance out करना पड़ता है और देखना पड़ता है when we are talking of safety and efficacy and services in blood transfusion. Now the big question is to be or not to be. So how we can be confident about the results which are being carried out in a blood bank and performed in a blood transfusion service. ये confidence जो है ये इसलिए जरूरी होता है खास तौर पे क्योंकि the decisions that are being made are directly proportional to the confidence that we have on the results of the test we perform. जितना ज़्यादा हम confident होंगे कि हमारे test correct हैं, उतना reliable decisions बन सकती हैं patients के लिए. और reliability जो है patient के decisions की उसके लिए this is important कि हम अपने results के बारे में confident हों. And how we can be confident by and large अगर एक statement में मैंने लिखना हो या बताना हो तो वो इस तरह से है कि by learning and practicing well informed objective process which needs not only learning and knowledge base but also there is a requirement for essential tools. Now today's webinar में जो हमारा focus है वो यही है कि we assume कि आप learning और जो कर चुके हैं knowledge आप acquire करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं जो भी आपके sources हैं and you want कि जी अब tools कौन से हैं जो use करने हैं हमने इस को practice करने के लिए. Okay, by and large अगर हम ओवरव्यू लें या जनरली अगर हम देखें तो बड़े जो टेस्टिंग है वो तीन डोमेन्स में फॉल करते हैं ब्लड बैंकिंग में. वील गो एंड टच इन द डिटेल्स बट यहाँ पे मैंने उसको समराइज कर दिया. तो जो बड़े टेस्ट हैं सेफ्टी के हिसाब से वो डोनर टेस्टिंग है फॉर TTIs, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एंड देन क्वालिटी ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि वो एक बेसिक स्टैंडर्ड को minimum standard को meet कर रहे हैं. And then we have a group of serological tests which are based on immune hematology, both concerning the patient and donor. अब ये जो चीज है जिसको हमने carry out करना है, overall हमने donor testing को जो summarize किया, blood transfusion में blood bank में testing को summarize किया है, तो उसमें influence क्या होता है, ये चीजें क्या इस्तेमाल की जाती हैं.
We know we have platforms. Platforms means the technology that we use, or in other words, the instruments and equipment that we use, and along with that, the reagents that we use. And then based on इन प्लेटफॉर्म्स और रिएजेंट्स को यूज करते हुए हम उसके ऊपर प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, और जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उसमें हमें टेस्ट परफॉर्मेंस जो है उसको देखना होता है। अब ये जो टेस्ट परफॉर्मेंस है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें कि वो क्या एलिमेंट्स हैं या चीजें हैं जो टेस्ट परफॉर्मेंस को कंट्रीब्यूट करती हैं, तो अगेन उसमें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, या जिसको अदर वर्ड्स में हम प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, वो होंगे द रिएजेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड, ऑपरेटर जो उन टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, देन एक्चुअली द प्रोसीजर, एंड जहां पे ये सारा कुछ हो रहा है वो एक सर्टेन एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो वो एनवायरनमेंट जो है वो भी टेस्ट परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने वाली एक चीज है। सो बाय एंड लार्ज ये 5 चीजें हैं जो के डोमेन्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो सारे के सारे क्वालिटी ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। सो एज वी सेड, द प्लेटफॉर्म्स और द टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, द रिएजेंट्स, द ऑपरेटर, एक्चुअल प्रोसीजर एंड एनवायरनमेंट। अब ये जो टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये जब इनको एक्वायर किया जाता है एट द टाइम कि हमने जब डिसीजन करना होता है कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द ब्लड बैंकिंग टेस्टिंग, तो ये टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स की सिलेक्शन, उसकी वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, फिर उसके मैन्युफैक्चरर ने जो रिकमेंड किया होता है उन इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लाई करना, फिर जो कंप्लायंस के लिए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एसओपीज हैं उनको लिखा होना और उनके साथ उसके मुताबिक काम करना, एंड ऑब्वियसली द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पार्ट ऑफ इट व्हिच एक्चुअली इज अ वेरी एसेंशियल थिंग फॉर द रूटीन परफॉर्मेंस। तो ये टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स के कुछ बड़े बड़े चीदा चीदा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको के एक एक्विजिशन या जिस वक्त हम डिसीजन करते हैं उसको एक्वायर करने के बाद हमें रिक्वायर्ड होता है टू हैव अ साउंड पीस ऑफ माइंड एंड प्रूफ कि हमने जो लिया है वो फिटनेस फॉर पर्पस है और वो उसी काम के लिए फिट है जो हमने उनको करवाना चाहते हैं। जो रिएजेंट्स हैं, ऑब्वियसली द रिएजेंट्स के जो है वो सिलेक्शन ऑफ द रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, वो एक वेल इन्फॉर्म्ड प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस काम के लिए हम इस रिएजेंट को ले रहे हैं उसके लिए वो फिट हो पर्पस के लिए। दिस इज कॉल्ड फिटनेस ऑफ पर्पस। उसके तरीकाकार हैं, I'll show you कि उसका तरीकाकार क्या है। देन ऑब्वियसली उस रिएजेंट को यूज करने के लिए भी मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, फिर एसओपीज जो हैं उसको यूज करने की रिएजेंट को वो भी मैन्युफैक्चर की तरफ से होती है, उसके साथ भी कंप्लायंस जरूरी होती है। अब ये जो प्रोसीजर है जो कि एक्चुअली लेबोरेटरी में कैरी आउट किया जाता है उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीकाकार, एक प्रोसीजर प्रोसेस का हिस्सा होता है और वो प्रोसेस गवर्न होता है, पॉलिसी के उसके अराउंड क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये एक 4 ईयर प्रोसेस होता है और इसको लिखा होना चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, उसको प्रोसीजर को क्वालिटी उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, ऑन गोइंग होनी चाहिए, ताकि दैट इज वेयर यू आर कॉन्फिडेंट कि हमारा टेस्ट परफॉर्मेंस डे टू डे जो है वो ठीक है। फिर इसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है, इसको जो है वो हमने जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये चल रहा होता है, ये प्लेटफॉर्म्स पड़े होते हैं, ये टेस्टिंग हो रही होती है, वो उसमें 3 बड़े फैक्टर्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइब्रेशन, बिकॉज दैट इन्फ्लुएंसेस द प्लेटफॉर्म्स एंड द इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड indirectly influence the reagents and then the quality of testing. फिर ऑपरेटर जो है जो इस प्रोसेस को, प्रोसीजर को कैरी आउट कर रहा होता है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी ऑनगोइंग प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकें उसी क्वालिटी के ऊपर। So why we want to invest in quality and why we want to have this assessment of reagents और tools जिनकी importance क्यों है, वो इसलिए कि हम quality में इसलिए assess करना चाहते हैं और invest करना चाहते हैं क्योंकि sometimes it's a very essential business requirement। दूसरा जो है हमारी consideration होती है कि जो भी हम करने जा रहे हैं quality में और assessment जो इसकी कर रहे हैं, क्या ये transfusion की safety को बढ़ाएगा और can this
help in or in some way affect the efficacy of the product जो हम बना रहे हैं blood products, और क्या ये sometimes जो है ये किसी risk को mitigate करने के लिए आपको ये quality को ensure करना होता है. और obviously we all owe whatever we do to our consumer, और consumer के confidence और patient safety के लिए requirement होती है कई दफा. फिर कई दफा जो है वो क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी होती है कि यू वांट टू नो एंड यू वांट टू इंश्योर द एनालिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ योर टेस्ट बीइंग कैरिड आउट. फिर हमारी कंसिडरेशन होती है कि क्या अगर स्टैंडर्ड ऑफ केयर चेंज हो गया है तो हम क्या उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर के ऊपर जाना चाहते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ केयर पर जाने के लिए हमें क्या कुछ करना है, एंड ऑब्वियसली दैट इज ऑलवेज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी. फिर समटाइम्स देयर इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा रेगुलेटर अगर कहना शुरू कर देता है कि 100% क्लायर टेस्टिंग करेंगे, तो फिर सारे ब्लड बैंक्स और सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स को जो है वो ये करना पड़ेगा. तो वो जो है उस केस में जो है वो एसेंशियल क्वालिटी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि वो जो है वो उसको प्रूव करेंगे जी आपके हम रेगुलेशन के साथ कंप्लाई कर रहे हैं. देन समटाइम्स द कंसिडरेशंस और भी होती हैं कि क्या हम ये जो क्वालिटी लेके आएंगे या कोई हम एडिशनल एलिमेंट इसमें करेंगे तो वो प्रेजेंट जो वर्कलोड है उसको बेहतर कर देगा कि नहीं करेगा. फिर एंड ऑब्वियसली आजकल जो जमाना है उसमें आपकी कॉस्ट जो सेविंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो वो जो है कॉस्ट सेविंग के लिए क्या ये कंट्रीब्यूट करेगा जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं. हम जब क्वालिटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा कंसिडरेशन क्या होती है कि क्वालिटी हमने क्यों इन्वेस्ट करनी है. क्या हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, क्या वो ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी इंक्रीज करेगा, क्या वो एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करेगा, क्या वो किसी रिस्क को मिटिगेट करने जा रहा है, क्या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और पेशेंट सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी एनालिटिकल सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, क्या ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर अचीव करने के लिए हमें हेल्पफुल होगा, या ये कोई नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आज से 100% क्लायर टेस्टिंग पे जाएंगे, तो फिर इसके साथ कंप्लायंस तो करनी पड़ेगी ना. एंड ऑब्वियसली दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन कि वो क्वालिटी को एनहांस कर रहा है, पेशेंट सेफ्टी को एनहांस कर रहा है. तो इसके अलावा समटाइम्स हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि क्या ये प्रेजेंट वर्कलोड को रिड्यूस कर देगा, क्या कॉस्ट सेविंग हो जाएगी इस मेजर को लेके, या ये हमारे प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर देगा. फॉर एग्जांपल प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग हमारी शॉर्ट हो जाएगी, और डिपेंड करता है कि किस सेटिंग में हम काम कर रहे हैं. अच्छा, अब ये जो सिलेक्शन ऑफ आप टेस्टिंग और क्वालिटी की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है. वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप किस किस्म की पॉपुलेशन को फीड कर रहे हैं, आपकी हॉस्पिटल की सेटिंग क्या है, क्या आपका नेचर ऑफ वर्कलोड क्या है, आपकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है. फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ब्लड बैंक और ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हेमेटोलॉजी क्लिनिक को दे रहे हैं तो आपको और किस्म के इंटेंसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल यू माइट हैव टू हैव अ रूटीन स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन पैनल. ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट है तो आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप एंटी-डी और एंटीबॉडीज, इरेगुलर एंटीबॉडीज देखेंगे तो वहां की रिक्वायरमेंट और है, और एचडीएन आप शायद ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखेंगे. जहां पे ट्रॉमा और एक्यूट सर्जिकल सेटिंग है वहां पे आपको और किस्म के प्रेशर्स होंगे. तो ये जो आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं अपनी रिएजेंट्स की, अपने प्रोसीजर प्रोसेसेस की, वो डिपेंड इसके ऊपर भी कर रहा होता है कि आप किस सेटिंग में बैठे हुए. तो उसकी कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है. दैट मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम अमंग द सेंटर्स. अच्छा जी, अब जो टेस्टिंग है ब्लड बैंक में बाय एंड लार्ज अगर हम इनको लिस्ट कर दें कि वो हम कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि एक एवरेज गुड सेंटर इन केस ऑफ पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने अगर क्लास ए उसको डिक्लेयर किया हुआ, तो किस किस्म के टेस्ट जो है वो वहां पे हो रही होती है. तो हमें पता है ग्रुपिंग हो रही होती है बोथ ए बी और डी, डायरेक्ट एंड रिवर्स दोनों होनी चाहिए और होती भी है. क्रॉस मैचिंग यूजुअली 3 फेज में रिक्वायर्ड होती है, अगर ट्यूब में हो, अगर जेल के ऊपर हो तो वो यूजुअली 1 फेज में हो रही होती है, और ये 3 फेज जो है वो रूम टेम्परेचर 37 डिग्रीज विद एनहांसमेंट और कूम्स के साथ हो रही होती है. एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन भी कहते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट कूम्स जो है वो दैट इज अ वे जो बहुत सारे टेस्टों में प्रोसीजर यूज हो रहा होता है. विल टॉक अबाउट दैट. एंटीबॉडी स्क्रीनिंग और डिटेक्शन करनी पड़ती है. एंटी डी के टीटर्स इवन एवरेज ब्लड बैंक में हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहां से वो सैंपल चल के कहीं और नहीं जा रहे हो. इसी तरह ब्लड डोनर टेस्टिंग जो है विद इम्यूनोएसिस के प्लेटफॉर्म में जो 4-5 मैंडेटरी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं नेशनली भी और WHO की मैंडेटेड भी हैं, वो ये 4 हमारे TTIs हैं जिनको टेस्ट करना होता है.
फिर मॉलिकुलर टेस्टिंग टीटीआईज की, वो भी अभी एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर नया बन चुका है जिसको हम नेट टेस्टिंग कहते हैं. देन इज द बैक्टीरियल टेस्टिंग. कुछ सेटिंग्स में जो है वो कुछ बाहर तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है, बट हम तो इससे बहुत दूर है. देन ल्यूकोफिल्टर प्रोडक्ट्स की ल्यूको डिप्लीशन को मॉनिटर करना होता है. तो ये जो है, ये वाले जो यहाँ तक है, ये ऑलमोस्ट रूटीन किस्म के एक एवरेज ब्लड बैंक को करना चाहिए. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर पेशेंट सेफ्टी. अब इसके लिए जो रिएजेंट्स हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एवरीबडी इज फेमिलियर विद दैट, कि हम एंटी-ए, एंटी-बी, एंटी-डी, एंटी-सीरा यूज कर रहे होते हैं. प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन हमें चाहिए होता है रिवर्स ग्रुपिंग के सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली ये यूज नहीं हो रहा होता. वील टॉक अबाउट दैट. एनहांसमेंट मीडिया कॉमनली यूज हो रहा होता है, क्योंकि अगर वो जेल को अफोर्ड नहीं कर रहा तो बाय एंड लार्ज जो है वो लोग जो है वो लिस और को या एल्ब्यूमिन को यूज कर रहे होते हैं. कूम्स रिएजेंट एंड ऑबिकस यूज है इसका, बिकॉज ये तो ब्रेड एंड बटर है ब्लड बैंकिंग में, इम्यून हेमेटोलॉजी की. देन एंटीबॉडी स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, जिनमें कैपेबिलिटी है, जो बड़े सेंटर हैं जो उस क्वालिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं और वो प्रॉब्लम इनकाउंटर कर रहे होते हैं, वो भी तकरीबन एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है फॉर एंटीबॉडी स्क्रीनिंग सेल. देन एंटी-सीरा फॉर अदर रेयर ब्लड ग्रुप्स जो है वो भी एट टाइम्स जो है वो बहुत सारे ब्लड बैंक्स जो हैं वो कम से कम बड़े जो है वो यूज कर रहे होते हैं. इम्यूनो ऐसे रिएजेंट्स जो हैं वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर रेसिपिएंट सेफ्टी के, वो टीटीआईज की ट्रांसमिशन के लिए की जाए तो उसकी तो 100% कंप्लायंस होती है. यस, दैट इज अनदर क्वेश्चन कि वो किस तरीके से किया जा रहा है. देन मॉलिकुलर टेस्टिंग फॉर टीटीआईज जो है, जिसको हम नेट टेस्टिंग कहते हैं, वो भी जो है वो ओकेजनली लोग कर रहे हैं, बट देन इट हैज टू बी, वी मस्ट बी श्योर कि हम जो कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है. देन मॉलिकुलर टेस्टिंग, ब्लड ग्रुप एंटीजन, प्लेटलेट एंटीजन, एचएलए, वो इसमें से कम ये दो जो है वो ब्लड बैंक्स की डोमेन में है, और एचएलए एंटीजन कुछ ब्लड बैंक्स जो हैं वो कर रहे होते हैं. ओके, अच्छा, अब परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन जो है उसको हम डिफाइन इसलिए कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन जो है, इसी के बारे में हमें इंश्योर करने के लिए कि हम उस स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहे हैं, वी नीड टू एम्प्लॉय ऑल दोज टूल्स एंड द मेथड्स एंड द वेज दैट वी वांट टू डू. परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन refers to a requirement to be satisfied by a product or a testing in order to have a confidence that it is fit for the purpose. ठीक है जी. और ये ब्लड बैंकिंग सेटिंग में जो है इसकी दो चीजें हैं, पर्टिकुलरली इम्यून हेमेटोलॉजी के हवाले से. वो है आपको स्पेसिफिसिटी ऑफ रिएजेंट का पता होना चाहिए एंड पोटेंसी ऑफ द रिएजेंट पता होना चाहिए. अब स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएजेंट इज यूनिक रिकॉग्निशन बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन. तो ये जो it should be only specific to a certain antigen. तो जिसको हम स्पेसिफिसिटी बोलते हैं. पोटेंसी जो है इसको हम और फर्दर डिफाइन कर लेते हैं. इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इतना अच्छा क्लियर नहीं होता. तो पोटेंसी जो मेजरमेंट है उसमें दो चीजें होती हैं. वन ऑफ देम इज द टीटर एंड द अदर इज एविडिटी. तो टीटर क्या है? इट इज द हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ द एंटी-सीरा at which you are able to obtain at least 1+ macroscopic agglutination. This is called titer. और avidity जो है, this is actually how strong is the reaction between the antigen and antibody, and it is the measurement का criteria उसका जो होता है वो time duration in seconds for the appearance of macroscopic agglutination. और ये आमतौर पर स्लाइड के ऊपर किया जाता है और अक्सर लोगों को ये नहीं पता. So इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोटेंसी की जब बात आती है इम्यून हेमेटोलॉजी में रिएजेंट्स के हवाले से, तो दो चीजें उसमें आपको पता होनी चाहिए. वन ऑफ देम इज द टीटर एंड अदर इज द एविडिटी. टीटर इज द हाईएस्ट डाइल्यूशन, डाइल्यूशंस के ऊपर बेस्ड होती है, एंड एविडिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्शन. और दोनों को प्रूव करना होता है आपने जब रिएजेंट्स आप यूज कर रहे होते हैं. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि ये परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन एक्चुअली सेट कौन कर रहा होता है? ये जो है ये आपकी रेगुलेटरी, चाहे नेशनल है, इंटरनेशनल है, और एक्रेडिटेशन एजेंसीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जो कि सेट करती हैं कि ये हमें परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन हमने डिफाइन कर दी है. और इसके साथ कंप्लायंस होने का मतलब ये है कि एक्चुअली आप पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से यू आर गुड. तो ये सबसे टॉप में इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो बेयर मिनिमम होते हैं वो WHO स्टैंड सेट करती है. इसके अलावा UK के हैं, इसके अलावा USA में है,
इसके अलावा जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल सोसाइटीज हैं, जैसे AABB इज अ प्रोफेशनल सोसाइटी, हमारी भी नेशनल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। हमारा सिर्फ लिमिटेशन ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम इंडिजिनस नहीं है, हमारा कंट्री वाइज इतना काम नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम कह सकें कि जी हम अपने हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी इंडिजिनस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाई है। उसका केस इन पॉइंट इज अ मलेरिया स्क्रीनिंग। ठीक है जी, मलेरिया में हमें पता है कि हम प्रेवलेंट कंट्री है, तो उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो मे बी दैट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर सम अदर पॉइंट, सम अदर टाइम, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देना था। ओके, अब यही जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो मिनिमम स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करते हैं, जिसके साथ कंप्लायंस इसलिए हम शो करते हैं कि बिकॉज वी वांट टू हैव अ कमिटमेंट और प्रूफ कि हमने पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर कर लिया। तो ये जो है ये इन्होंने ही इन्हीं के एफर्ट से जो है वो फिर टूल्स भी अवेलेबल किए होते हैं जिनको आप स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स क्या है, इसमें रिएजेंट्स और ये स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। और ये WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो NIBSC में रखवाए गए हैं, जो यूके में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, और पॉल एरलिख इंस्टीट्यूट में है। इसके अलावा NIH USA में भी है। इसके अलावा जो है वो कुछ और कंट्रीज हैं जिनमें उनकी नेशनल लेवल के ऊपर, उनके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो कोलैबोरेट करते हैं WHO के साथ, और वो कोलैबोरेटिव स्टडी से स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और उसके ऊपर इंटरनेशनल कंसेंसस होता है। और फिर इन्हीं के को बेस बना के जो कमर्शियल लोग होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाएं या टर्शियरी स्टैंडर्ड्स बनाएं। एंड देन ब्लड बैंक जो हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं दे हैव टू प्रूव कि जी जो उन्होंने इस क्वालिटी असेसमेंट के लिए अगर कोई टूल या स्टैंडर्ड यूज किए हैं तो दे आर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू दोज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इट इज जस्ट लाइक सेम कि जिस तरह हमें पता है कि फ्रांस में वो जो जगह है जहाँ पे उन्होंने एक 12 इंचेस इंटरनेशनल 1 किलोग्राम या 1 ग्राम का वो जो वेट है वो रखा हुआ है, और जो भी कोई एक रूलर बनाता है या फुट रूलर बनाता है तो वो ट्रेसेबल होता है उसको, कि उनका 1 फुट जो है वो हमारे 1 फुट जो है उसका उसको बराबर है। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि इसमें भी होती है। अब दिस इज जस्ट एग्जांपल के ये पॉल एरलिख इंस्टीट्यूट जर्मनी का जो है वो कोलैबोरेटिव सेंटर है WHO का, तो उन्होंने रेफरेंस मटेरियल जो है अपने पास बना के रखे होते हैं जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बने होते हैं। अच्छा, कमिंग अगेन टू जैसे मैंने बात की है कि हमें एसेंशियल टेस्ट, हमने कहा कि ये बेयर मिनिमम टेस्ट हैं जो कि अभी एक एवरेज ब्लड बैंक को करने पड़ जाते हैं, और इसके लिए क्वालिटी जो रिएजेंट्स हैं, जो टूल्स हमें चाहिए होते हैं टू इंश्योर कि ये टेस्ट जो है हमारे सही परफॉर्म हो रहे हैं, उनमें से मैंने कुछ लिस्ट किए। आई विल गो थ्रू दीज वन बाय वन ताकि आपको अंदाजा हो कि ये वो टूल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमारी ब्लड बैंक में टेस्टिंग जो है वो क्वालिटी की हो रही है। इसमें मैंने लिस्ट जो किए हैं इसको मैंने यहाँ पे एलैबोरेट कर दिया है। यू नीड फॉर एंटीसीरा, एंटी-बी, व्हाट यू नीड इज एंटी-ए, एंटी-बी, एंटी-डी, एंटीसीरा का मिनिमम पोटेंसी एंटीसीरा which is traceable to WHO controls. Then for reverse blood grouping cells, उसको सस्पेंड होना चाहिए एक एल्सेवर सोल्यूशन में। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एंटीजन प्रिजर्व रहे। आफ्टर ऑल आप उसके ऊपर एक डिसीजन ले नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ फॉल्स रिएक्शंस आने का चांस नहीं होना चाहिए। इसी तरह एंटीबॉडी स्क्रीनिंग या इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन और के दौरान भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका सेंसिटिविटी जो है वो ठीक है उस टेस्ट की, और वो उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह की उसको करना चाहिए। देन यू हैव अ वीक O सेल्स जिसमें हेटेरोजाइगस होता है D के लिए। ये बार बार इसकी बात इसलिए आती है कि यू वांट दी सेल्स के जिसके ऊपर आप बहुत सारे जगहों से क्वालिटी चेक कर सकते हैं। देन यू हैव अ चेक सेल्स, देन यू हैव अ सीरोलॉजी TTIs के लिए जो इम्यूनो एसेस हैं उसका कंट्रोल। तो ये उनको सेंसिटिविटी एंड परफॉर्मेंस को असेसमेंट करने के लिए आपको कंट्रोल्स चाहिए होते हैं। एंड नैट कंट्रोल्स, अगर नैट कर रहे हैं, जब हम बैक्टीरियल टेस्टिंग करेंगे तो हमें बैक्टीरियल टेस्ट के लिए कंट्रोल चाहिए होगा। सिमिलरली अगर कोई मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कर रहा है, चाहे वो रेड सेल एंटीजेंस का कर रहा है या प्लेटलेट्स का कर रहा है या किसी और का कर रहा है, तो उसको भी दे हैव टू प्रूव कि जी वो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जो है वो रिलायबल है। देन
नॉट ओनली दिस थिंग, आप जनरल हीमेटोलॉजी की कुछ चीजें जो है ओवरलैप हो रही होती है, डोनर का हीमोग्लोबिन कई दफा जो है वो एनालाइजर्स के ऊपर हो रहा होता है या कुछ और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रहा होता है जो पॉइंट ऑफ केयर पे भी जा रहे होते हैं और वो कैंप्स की शक्ल में भी जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो डोनर का जो हीमोग्लोबिन चेक किया गया है या कोई और पैरामीटर चेक किया है तो वो रिलायबल है, उसमें कोई एरर नहीं है, और अगर एरर है तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है। अब ये एक्सेप्टेबल लिमिट का एरर जो है इसके ऊपर हम किसी और वक्त में बात करेंगे, जिसको टोटल रिलायबल एरर कहते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत परफेक्ट जगह पे काम कर रहे हैं, बट जो बजट आपको अवेलेबल है एरर का वो कितना है, और आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में वो आप उस एरर के बजट के अंदर ही रह के काम कर रहे हैं। अगर आप उस बजट के एरर बजट से बियॉन्ड जा रहे हैं तो यू हैव अ प्रॉब्लम, आप पेशेंट के कुछ सेफ्टी इशू क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब दिस स्टार्टिंग ऑफ विद द एंटी-सीरा, if you look at this, this is what the medicinal and healthcare products regulatory agency के अंडर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो काम करता है, जो कि WHO का कोलैबोरेटिव सेंटर है। अब व्हाट दे हैव मेड इज इंटरनेशनली ये सब जगह पे नेशनल अथॉरिटीज के पास होता है, एनटीए ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट है फॉर यूज इन अ ट्यूब टेस्ट, एंड वो क्या कह रहे हैं कि इसको यूज करके आप अपना पोटेंसी टीटर जो करें अपने एंटीसीरा का जो आपने प्रोक्योर किया है, दैट शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ दिस प्रोडक्ट, जब उसको रिकंस्टिट्यूट करें और एक स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन पे आप ले आए या उसको डाइल्यूट कर लें। सिमिलरली ये जो है ये एंटी बी का भी है, एंटी डी का भी है। तो ये खास तौर पे जिस वक्त आप इसको रिएजेंट को एंटी ए, एंटी बी, एंटी सीरा को प्रोक्योर कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू प्रूव कि उसका पोटेंसी टीटर क्या है, एंड पोटेंसी टीटर इज नॉट समथिंग जो कि स्टैंड अलोन हवा में खड़ा होता है। दिस हैज टू बी कंपेयर्ड विद समथिंग, एंड दैट कंपैरिजन जिस चीज से किया जा रहा होता है दैट हैज टू बी वैलिडेटेड, स्टैंडर्ड, प्रूवन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये रूटीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, या ये मैंने इसलिए बताया है कि बिल्फर्स यू हैव डू नॉट हैव एक्सेस। अवलन तो उसको एक्सेस करना चाहिए आपको, उसको एंटीसीरा को खास तौर पे जब बड़ी प्रोक्योरमेंट की जाती है तो उस बड़ी प्रोक्योरमेंट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक सेक्टर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कर रहा है तो पब्लिक सेक्टर को पता होना चाहिए कि वो एंटीसीरा जो दे रहा है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है पेशेंट के ऊपर। अगर उसमें डिजायरेबल एंटीसीरा का टीटर नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, तो इट इज गोइंग टू मिस द ब्लड ग्रुप, और दैट इज अ बेसिक यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई ब्लड ग्रुपिंग में एरर कर देता है तो व्हाट डज इट मीन, दैट इज अ ह्यूज कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू पे। तो उसमें एंटी ए के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि ए सेल के अगेंस्ट अगर आपने उसका टीटर देखा है तो वो 256 से ज्यादा होना चाहिए, A2 सेल्स के साथ 128 होना चाहिए, A2B सेल्स के साथ ये। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास ये सेल्स अवेलेबल होने चाहिए ना, जिसके अगेंस्ट आप चेक करके टीटर कर सकें। सिमिलरली एविडिटी अगर आपने करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि जी वो कितना एविडिटी को शो करनी चाहिए, ये उसका टाइमिंग है, यूजुअली स्लाइड टेस्ट पे किया जाता है और 10% सस्पेंशन से किया जाता है। बी सेल्स के लिए क्या है, आपका ये टीटर होना चाहिए, A2B सेल्स के साथ ये टीटर होना चाहिए, एंड सिमिलरली A, B या AB आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आपका टीटर की क्या रिक्वायरमेंट है और एविडिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज अ गुड रेफरेंस पॉइंट कि आपको बेसलाइन कम से कम ये पता हो कि आप जो एंटीसीरा प्रोक्योर कर रहे हैं या अपने ब्लड बैंक में यूज कर रहे हैं, आपने कुछ तो प्रूव किया हुआ है ना कि जी ये इस टीटर के ऊपर तो कम से कम है, ताकि आपका पेशेंट जो है उसमें ग्रुपिंग गड़बड़ ना हो। एंटी डी में क्या है जी? एंटी डी में ये है कि लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनली यही है कि आपकी RH ग्रुपिंग 2 दफा होनी चाहिए। एक दफा जो है वो आप इनिशियली कर सकते हैं, डोनर में भी, डोनर में तो एसेंशियल है कि 2 दफा ग्रुपिंग होनी चाहिए। उसमें एक दफा सिर्फ डायरेक्ट हो सकती है, और वो सिर्फ जो है जिस भी इन्वायरमेंट में कर रहे हैं उसके लिए 2 रिएजेंट्स वो कहते हैं प्रेफरेबल हैं कि एक जो है वो आप IgM करें जो कि स्लाइड टेस्ट पे या ट्यूब टेस्ट में होता है और डायरेक्ट होता है, और एक ब्लेंडेड करें IgG एंड IgM, और अगर नेगेटिव हो तो वीक डी टेस्ट के ऊपर करें अगर डोनर है पर्टिकुलरली, नॉट द रेसिपिएंट। अच्छा जी, इसमें एक्सेप्टेबल टीटर क्या है जी? एक्सेप्टेबल टीटर IgM अगर मोनोक्लोनल आप एंटी डी यूज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव सेल्स के साथ ये टीटर की रिक्वायरमेंट है जो डी पॉजिटिव होगा, और अगर आपने 37 पे इंक्यूबेशन की है उसकी टीटर किया है तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट
रूम टेम्परेचर पे ये है और 37 पे उसकी ये रिक्वायरमेंट है ब्लेंड की। अच्छा, मैं ब्लेंड के लिए 37 पे जा रही हूँ, आईजीएम के लिए नहीं जा रही, बिकॉज हमें पता है कि वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, उसके लिए हमें 37 पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आईजीजी एलिमेंट होता है जिसको क्या आपने प्रूव करना होता है कि वो 37 के ऊपर उसका क्या टीटर है। तो यहाँ पे मैंने एविडिटी रख दी, और यहाँ पे जहाँ पे वो एबीओ के लिए आपकी 4+ रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 3+ भी हो तो दैट इज गुड। Okay, now if you have to do a quality assessment of A1 cells and lectins, तो anti-A1 का करना हो या other lectins का करना हो तो उसके लिए आपके क्या requirement है? जब भी आप procure करें तो you got to have the right kind of cells. That means कि A1 भी चाहिए, A2 भी चाहिए, O भी चाहिए, और उसमें आपने टीटर देखना है और ये देखना है कि वो specific to A1 है. Similarly, anti-H के लिए आपकी requirement है, and then this is the requirement for avidity. अब रूटीन में आप क्या कर सकते हैं? डेली क्यूसी। ऐसा हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हमारा जो है वो डेली कंट्रोल्स बिल्कुल आइडियल है और उसमें जो है वो डेली जो है वो वर्किंग आइडियल है, जब तक हम प्रूव नहीं कर देते कि दैट इज आइडियल। तो उसमें यह है कि रिएजेंट रेड सेल्स जो हैं वो आपको जो रिक्वायर्ड होते हैं, एंटी ए, एंटी बी, आप पर लॉट और पर बैच जो है उसकी टेस्टिंग करें, और दिस इज द टाइप ऑफ सेल्स दैट यू रिक्वायर, और उसमें उनको पूल कर लिया जाता है। और उसमें आपने दोनों देखने होते हैं कि जी वो सेंसिटिव भी है, 4+ स्ट्रॉन्ग ग्लूटिनेशन भी शो करता है, और स्पेसिफिक है कि दूसरे एंटीजन के लिए रिएक्ट नहीं कर रहा। सो दैट शुड बी ए डेली रूटीन। ओके, नाउ कमिंग टू द रिएजेंट रेड सेल, जो हम रिवर्स ग्रुपिंग के लिए करते हैं और यूजुअली हम खुद बनाते हैं उसको। अच्छा, उसमें जो जनरल गाइडलाइन है, ये मैंने यूके से गाइडलाइन को आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो आपने अगर एंटीजन ए बी एंटीजन को टेस्ट करना है तो फिर इंडिविजुअल शुड हैव अ फिनोटाइप, जो भी आप सेल यूज कर रहे हैं, या तो वो डुप्लीकेट टेस्टिंग डिफरेंट एंटीसीरा यूज करके किया जाए, या वो एक एंटीसीरा एंड हिस्टोरिकल ब्लड ग्रुप टाइप जो है उसका हुआ हो। यानी अगर आप एक बंदा जो है वो कंसिस्टेंटली अपने ब्लड दे रहा है इस काम के लिए, लेबोरेटरी का बंदा है या कोई डोनर है, तो वो उसका एक हिस्टोरिकल ब्लड ग्रुप होगा कि हर दफा वो ए ही आता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ कर जाता है। तो वो एक हिस्टोरिकल ब्लड ग्रुप एंड देन जो उसका करंट टेस्टिंग है वो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होता है, और वो अनवांटेड पॉजिटिव रिएक्शन शो ना करे। And similarly, they should be direct Coombs negative, both for complement and anti-IgG, you employing a polyspecific. अब यहाँ पे वो जो कह रहे हैं, मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ ऑडियंस की, कि वो कह रहे हैं कि they should be processed by a method and suspended in a medium that consistently ensures stability of antigen specified in antigen profile included in the package interest. That इसी वजह से हम जो रिवर्स सेल्स होते हैं उनको एल्सेवर सोल्यूशन पे करना चाहते हैं, क्योंकि उसका आप सीरम और प्लाज्मा को उसमें से निकाल देते हैं, आप इस प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में डाल देते हैं जो एंटीजन को प्रिजर्व भी ज्यादा अरसे के लिए करता है, उनको डिट्यूरेट भी होने से बचाता है, और उसमें वो उसके सीरम और प्लाज्मा को भी निकाल देता है जिसमें आपकी एंटी ए एंटी बी होती है जो कि न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो इसलिए उसको सेलाइन में डेंजर ये होता है कि वो जो है डिट्यूरेट कर जाता है। तो ये जो अल्सवर्स होता है इसकी कॉम्पोजिशन में आइनोसिन भी होता है, डेक्सट्रोज भी होता है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, एंटीकोएगुलेंट भी होते हैं, तो दैट इज रिकमेंडेड, और इसको कहते हैं मॉडिफाइड अल्सवर्स। और जैसे कहा मैंने कि इसको अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाइट सेल्स जो हैं वो इसको इसकी सेल्स की रेड सेल्स की जो है वो प्रॉब्लम करते हैं अगर उसके अंदर रह जाए, तो इसलिए ये जो रिवर्स सेल्स होते हैं वो प्रेफरेबली जो है वो उससे बने होने चाहिए, ल्यूकोडिप्लीटेड ब्लड से। तो उस केस में फिर वही बात है कि अगर कमर्शियल वायबल हो और अवेलेबल हो तो वो जो है कर लेना, उसमें कोई मुजायका नहीं होता, बिकॉज देन इट्स अ पीस ऑफ माइंड। तो इसकी आप डेली जो है वो जो प्रूव करना है वो नॉन रेड सेल्स होने चाहिए, और उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों प्रूव कर रहा होता है कि जी ये उसके आप डेली उसको क्यूसी चेक कर लें रिवर्स सेल्स का। सो नॉन सेल्स होने चाहिए जिनका आपको पता होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट अपने सेल्स को आप और नॉन एंटीसीरा जो है विद प्रूवन एफिकेसी वो उसके अंदर उसको प्रूव करना चाहिए कि ये रिएजेंट रेड सेल ठीक काम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द एनहांसमेंट मीडिया। अब ये एनहांसमेंट मीडिया जो है ये अक्सर जो है ना बड़ा लोगों के ज़हन में कंफ्यूजन होता है, और मैंने लास्ट टाइम भी हम पार्ट 2 वालों को मैं हमेशा ये बताती हूँ, और क्वेश्चन भी मैं उसमें पुट इन करती हूँ जब भी कोई वर्कशॉप होती है।
लेकिन जो लो आयनिक स्ट्रेंथ सेलाइन है, ये इट्स अ वेरी गुड एनहांसमेंट मीडिया, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एनहांसमेंट मीडिया। और लेकिन इसकी जो दो किस्म की इसके लिस्ट होता है, एक होता है जो वॉश सोल्यूशन होता है और वो रिसस्पेंशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल ये जो जेल सिस्टम है, वो जो अपना साथ लिस्ट देते हैं एक महंगा सा, वो जो है वो वॉश सोल्यूशन होता है, वो रिसस्पेंड किया जाता है। और एक होता है लिस्ट जो कि एडिटिव फॉर्म में यूज करता है, कि जब आपने एक दफा रूम टेम्परेचर कर लिया तो फिर आप नेक्स्ट में 37 डिग्रीज के ऊपर जब जा रहे होते हैं तो फिर आप उसको जो है वो एडिटिव सोल्यूशन डालते हैं। तो इसकी जो एवेल्युएशन करनी होती है और वैलिडेशन वैलिडेशन तो हर बैच टेस्टिंग है जिसमें आप बहुत रोबोस्ट तरीके से और सारी कंप्लीट चीजें देखते हैं। एवेल्युएशन जो है दैट कैन बी शॉर्ट, लेकिन उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड ऑब्वियसली इसमें इम्पोर्टेड वर्सेस लोकल कॉस्ट, अगर लोकल आपको जो है वो अवेलेबल हो जिसकी कि एफिकेसी और एवेल्युएशन करके आप प्रूव कर सकें कि इट वर्क्स वेल, एंड विद इम्पोर्टेड वन तो मेरा ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी और कॉस्ट जो है वो बड़ी अफोर्डेबल हो जाती है। और उसकी किस तरह प्रूव कर सकते हैं, ज़रा ऑब्वियसली क्वालिटी मॉनिटरिंग करके। अब इसका तरीका क्या है जी, लो आयनिक स्ट्रेंथ सोल्यूशन जो है हमें उसको कहना चाहिए जो कि मूर और वैलिसन ने सबसे पहले 1960s में डिस्क्राइब की थी। और जैसे मैंने कहा, आइदर मेक श्योर दैट आप अगर सस्पेंडिंग चाहिए आपको तो आप लिस्ट सस्पेंशन लें, अगर आपको एडिटिव चाहिए तो आप एडिटिव लीजिए। और ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है, देयर इज सम डिफरेंस। यहाँ पे एडिटिव में एक एडिशनल जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल डला होता है उसमें, तो वो इसलिए काम करता है, इसमें वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता। तो इसलिए अगर आप सस्पेंड करके प्रोसीजर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप सस्पेंशन लीजिए। अगर आप ऐड करना चाहते हैं 2 ड्रॉप एडिशनल उसमें रूम टेम्परेचर के बाद 37 की इंक्यूबेशन के लिए, तो आप वो लीजिए। डू नॉट चेंज इंटरचेंजेबली यूज दैट। हमने क्या, इसकी केमिकल स्पेसिफिकेशन क्या है जो प्रूव भी करनी होती है और उस पर लिखी भी होती है, और वो उसको अगर किसी के पास फैसिलिटी हो तो वो जरूर देखे। पीएच के बारे में स्टैंडर्ड है, कंडक्टिविटी उसकी ये होनी चाहिए, ऑस्मोलैरिटी ये होनी चाहिए। वंस यू नो कि जी ये जो लिस्ट अवेलेबल है उसमें ये केमिकली ये है, तो यू आर गुड। अब सेकंड पार्ट उसका, बिकॉज हम इसको एनहांसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं और किसके साथ कंपेयर करेंगे, वो है गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि है सेलाइन टेस्टिंग। तो बायोलॉजिकल प्रूव करने के लिए कि ये सीरोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन ये वाला लिस्ट मीट करता है, उसका तरीकाकार क्या है कि यू गॉट टू हैव दिस टूल वीक एंटिटी विच इज यूजुअली ट्रेसेबल टू अ WHO स्टैंडर्ड। और फिर आपको हेट्रोजाइगस डी पॉजिटिव सेल्स चाहिए होते हैं विच इज यूजुअली R1 स्मॉल r सेल्स। उसको आप लिस्ट में सस्पेंड करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्शन है और जो टाइम टू रिएक्शन है, दैट शुड बी बेटर देन सेलाइन। ठीक है जी, क्योंकि सेलाइन जो है वो आइडियली 1 आवर की इंक्यूबेशन रिक्वायर्ड होती है, फिर वो सेंसिटिविटी जो है वो कंपैरेबल हो जाती है लिस्ट के लिए। तो अगर आपने लिस्ट को करना है तो फिर इसका मतलब है कि आप उसको सेलाइन के साथ प्रूव करेंगे कि जी ये उसकी कंपैरेटिव में जो है वो ज्यादा सेंसिटिविटी दे रहा है इन एंटीबॉडी डिटेक्शन। ओके, रूटीन टेस्टिंग जो है वो इसके लिए, जैसे मैंने कहा, अगर आपने एनहांसमेंट मीडियम लिया है, आपके पास केमिकल का नहीं है, तो आप ये इजीली कर सकते हैं इफ यू कैन मेक द टूल्स अवेलेबल, जो कि मैंने कहा कि वीक एंटिटी है और अगर आपके पास हेट्रोजाइगस सेल्स है, सो यू कैन हैव अ पीस ऑफ माइंड सेइंग कि जी मैंने इसके साथ कर लिया। तो जैसे मैंने कहा, ये दो चीजें अगर हैं तो you will can do it, and how frequently you can do it, weekly या with each new lot of lists। अच्छा, अब आगे स्पेसिफिसिटी जो है हमने बात की कूम्स की, दैट इज उसकी टेस्टिंग जो है, कूम्स सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट है और सबसे सेंसिटिव और सबसे फ्रीक्वेंटली डन टेस्ट होता है। तो इसमें जो पोटेंसी टेस्टिंग होती है वो चेकर बोर्ड टाइट्रेशन के साथ की जाती है, और उसमें टूल क्या यूज किया जाता है, कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, वो रेड सेल्स होते हैं जो सेंसिटाइज्ड होते हैं IgG के साथ, और उसके ऊपर यूजुअली एंटी-डी होती है, वो सबसे स्टेबल और सबसे कॉमन, सबसे अच्छी यही होती है। और इसको आप क्या करते हैं कि आप इसकी पोटेंसी डिटरमिन करने के लिए जो आपने क्राइटेरिया है वो ये है कि ये जब आपने यूज किया तो पोटेंसी टीटर जो है 8 to 32 होना चाहिए आफ्टर हैविंग एम्प्लॉयड R1 R सेल्स जो कि पूल हो फ्रॉम 4 इंडिविजुअल्स। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके एंटी आईजी को एंटी IgG रिएजेंट जो है
वो सेटिस्फैक्ट्री है अगर सारी डाइल्यूशंस जो हैं वो रेफरेंस रिएजेंट के अगेंस्ट जो है वो ज्यादा उसके या तो बराबर है या उससे एक्सीड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं इस फिगर में, दिस इज अ चेकर बोर्ड डाइल्यूशन। चेकर बोर्ड डाइल्यूशन का तरीका क्या है कि एक साइड पे आप आईजीजी सेंसिटाइज्ड सेल्स की डाइल्यूशन बनाते हैं और दूसरी साइड पे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन की बनाते हैं। और ये जो व्हाइट में नजर आ रहा है ये WHO का ट्रेसेबल कंट्रोल है, और ये जो ग्रे में नजर आ रहा है ये आपका जो कूम्स आया हुआ है असेसमेंट के लिए वो है। तो इसका मतलब है कि आपने रेफरेंस रिएजेंट को डाइल्यूशंस करनी है उसकी, और जो कि ये चीज है आईजीजी लेके उसकी सेंसिटाइज सेल बना के उसकी आपने ये डाइल्यूशन करनी है, और कूम्स का जो है वो रेफरेंस रिएजेंट लेके आपने उसकी भी डाइल्यूशन करनी है। एंड देन यू हैव टू प्रूव के इन दोनों का बराबर है। सो दैट इज द ओनली वे जो प्रोक्योरमेंट के वक्त आप प्रूव कर सकते हैं कि ये कूम्स जो है वो उसकी पोटेंसी ठीक है या वो सही काम करेगा। अब आ गया डेली जो है आप क्या करेंगे, या नया बैच आपके पास आ गया तो क्या करेंगे। तो उसके लिए अगेन यू रिक्वायर वीक एंटिटी, और वो जो है उसको आप टाइट्रेशन कर सकते हैं। आईजीजी सेंसिटाइज्ड सेल चाहिए, और इसके लिए आपको अगर आपका कूम्स जो है वो एंटी आईजीजी टीटर 164 दे रहा है और एंटी C3C4 जो है 14 दे रहा है, तो आपका रिएजेंट ठीक है। सो दिस इज फॉर एवरेज रूटीन स्मॉल ब्लड बैंक्स जिनको ये प्रूव कर सकते हैं अपनी क्वालिटी। अब ये जो एंटी-डी मैं बार बार इसकी बात कर रही हूँ, वीक एंटी-डी, ये होता क्या है? ये जनाब इसमें लेस देन 0.1 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml होता है, और इसको आप पेशेंट के सैंपल के साथ टेस्ट करते हैं। जब पेशेंट के सैंपल के साथ टेस्ट करते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी और वैलिडिटी आप टेस्ट की प्रूव करते हैं। और ये सबसे ज्यादा किस टेस्ट के साथ यूज होता है? ये होता है आपका इनडायरेक्ट कूम्स के साथ। और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट की इंडिकेशंस क्या है। यहाँ ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के लिए यूज हो रहा होता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन के दौरान हम कर रहे होते हैं, एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन हमारा इनडायरेक्ट कूम से हो रहा होता है, एंटीबॉडी टाइट्रेशन जो हम ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट में कर रहे होते हैं रेगुलर एंटीबॉडीज के लिए, वो भी उसकी जो बेसिस होती है वो इनडायरेक्ट कूम्स होता है। फिर क्वालिटी असेसमेंट जब एनहांसमेंट मीडिया की करते हैं तो भी इनडायरेक्ट कूम्स के थ्रू करते हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल जो कूम्स टेस्ट का आप कर रहे होते हैं वो भी इनडायरेक्ट कूम्स के साथ आप उसको प्रूव कर रहे होते हैं। फिर चेक सेल की प्रेपरेशन भी आपकी जो है वो इसके ऊपर बेस्ड होती है। इलुएट अगर किसी ने बनाया तो उसका भी है। तो ये बहुत सारी इंडिकेशंस हैं। तो अगर आपके पास वीक एंटिटी और आपके पास ये R1R सेल्स हैं हेटेरोजाइगस, तो आप उसको अपना सेंसिटिविटी कंट्रोल के तौर पे जहां पे भी इनडायरेक्ट कूम्स यूज करें उसके साथ एम्प्लॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो रिएजेंट रेड सेल हैं R1R हेटेरोजाइगस फॉर डी जिसको प्रूव किया होता है, और 3 से 4 डोनर्स आपको चाहिए होती हैं अगर आपने पूल करना होता है, तो ये आमतौर पे 2 to 3% सस्पेंशन में मॉडिफाइड एल्जेवियर सॉल्यूशन में अवेलेबल होता है और अवेलेबल किया जा सकता है। और ये जैसे मैंने कहा R1R सेल्स है, और इसकी जो पर्पस है वो मैं बार बार पीछे बता आई हूँ। These are controls for serological test. सेंसिटिविटी चेक भी कर सकता है एनहांसमेंट मीडियम का, उसके लिए ये रिक्वायर्ड होता है। एंटी-डी और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए भी ये आपका कंट्रोल है, और एंटी-डी एंटीबॉडी टाइट्रेशन के लिए भी, और चेक सेल बनाने के लिए भी। अब जो है आईजीजी सेंसिटाइज्ड सेल्स और इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन, ये जो प्रिंसिपल है इस टेस्ट का वो यही है कि आपका हीम एग्लूटिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है, और आप जो है ये जो डेली हमें रिक्वायर्ड होता है चेक सेल्स जिसको हम बोलते हैं, हमने क्या करना होता है, इसका मकसद क्या होता है? ये वीक आईजीजी कोटेड होती है हेटेरोजाइगस सेल्स के ऊपर, और काम क्या करता है कि इट वेरीफाइज द प्रेजेंस ऑफ के जो सिस्टम आपका था जिसको आपने टेस्ट किया है इनडायरेक्ट हीमोग्लोबिन के लिए, उसमें एंटी आईजीजी एक्टिव है, और जब वो एक्टिव आईजीजी होती है तो दैट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव कंट्रोल। और अगर नेगेटिव हो तो उसके अंदर कोई एंटी आईजीजी ना हो तो फिर ये चेक सेल्स जो हैं ये एंटी हीमोग्लोबिन रिएजेंट्स के ऊपर एज अ नेगेटिव कंट्रोल यूज करते हैं। सो दिस आल्सो कंफर्म्स के कोई जो आईजीजी था उसके अंदर कोई मौजूद तो नहीं, न्यूट्रलाइज तो नहीं हो गया आपका कूम्स, क्योंकि वो जो सेल सस्पेंशन आपने बनाई थी कूम्स टेस्ट करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें इनकम्प्लीट वॉशिंग या किसी और फैक्टर की वजह से आपका वो न्यूट्रलाइज हो गया है और आपका एक्चुअली
वो उस टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो कोई नहीं रही एंड इट्स नॉट रिलायबल, तो उसके लिए यू नीड दीज चेक सेल्स। तो कमर्शियल जब बने होते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि एक तो वेल सर्वर सोल्यूशन में बने होते हैं, नोन कंसंट्रेशन के ऊपर बने होते हैं, और वो जो है उसमें आपको वो सारे प्रोसेसेस नहीं करने पड़ते। अच्छा, अब आगे बात जो हमने गोइंग बैक टू द सेम, अगर इफ यू रिकॉल तो मैंने बात की थी कि क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जहां पे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, रिएजेंट्स हैं, एनवायरनमेंट है, परफॉर्मेंस जो टेस्ट परफॉर्मेंस है उसमें एक एलिमेंट जो है वो आपकी ऑपरेटर की ट्रेनिंग है कि वो ऑपरेटर जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो टेस्ट। इस चीज को प्रूव करने के लिए कि आपका जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, जो ऑपरेटर है, जो टेस्ट परफॉर्मेंस का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, उसको उसकी ट्रेनिंग ऑप्टिमम हो, उसकी प्रोफिशिएंसी आप प्रूव कर सकें, उसको डॉक्यूमेंट कर सकें, तो उसके लिए जो है ये किट अवेलेबल होनी चाहिए उसको। ये टूल है, ये तरीकाकार है जिससे आप उसकी इंटरनल सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, ना सिर्फ इंडिविजुअल ऑपरेटर की बल्कि आपके ब्लड बैंक टेक्निक्स की भी और टेस्ट सिस्टम्स की। तो उसमें होता क्या है कि इसमें एक इरेगुलर ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी होती है, कुछ भी हो सकती है, एंटी डी भी हो सकती है, कोई और जो है वो आईजीजी भी हो सकती है, आईजीएम भी हो सकती है, जो कि इनडायरेक्ट ह्यूमन ग्लोबुलिन में पिक हो सकती है या रूम टेम्परेचर में पिक हो सकती है। तो ये तो प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की चीज बना के देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बहरहाल जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज होती हैं वो आईजीजी होती हैं, और उसके लिए जो है ये वाला जो प्रोफिशिएंसी होती है वो आमतौर पे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट के ऊपर ही बेस्ड होती है। और इसमें 10 टेस्ट होते हैं जो नंबर्ड होते हैं और रैंडमली सिलेक्टेड सीरम सैंपल्स होते हैं, वही मैट्रिक्स होता है जो आप डेली पेशेंट का देख रहे होते हैं, और की उसमें अवेलेबल होती है जो सुपरवाइजर को प्रोवाइडेड होती है, और वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, और कंटेंट जो है उनको आप डिस्पेंस कर सकते हैं, आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो उसको हाइड कर सकते हैं ताकि वो जो ऑपरेटर है उसको पता ना चले, और उसके बाद आप उनके साथ ब्लाइंडली टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रूविंग कि आपका जो स्टाफ है, जो टेक्नोलॉजिस्ट है, वो प्रोफिशिएंट है टेस्टिंग में। अब आगे बात टीटीआईज की टेस्टिंग की, जो कि बहुत बड़ा एक जिसको क्या कहते हैं एक्यूलीज टेंडन भी है, वहां पे हमारे प्रॉब्लम्स भी सबसे ज्यादा हैं, सेफ्टी का इशू भी सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आई एम अंडरमाइनिंग इम्यून हेमेटोलॉजी टेस्टिंग, बट इफ वॉल्यूम वाइज आप देखें तो आपको जो जहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा वेरिएशन है और जिसमें रिस्क जो है वो ट्रांसमिशन का सबसे ज्यादा वो यही है। अब WHO क्या डिफाइन करता है? WHO ये कहता है कि जो भी आप रिएजेंट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी यूज करें ब्लड डोनर टेस्टिंग के लिए, उसमें मिनिमम सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी लेवल ऑफ ऑल एसेज which are used for blood donor screening should be as high as possible and preferably not less than 99.5%. अब you can imagine what does it mean? असल बात तो यही है कि ये 99.5% हमें कैसे पता चलेगा कि इससे नीचे सेंसिटिविटी तो नहीं है? That is a point we have to prove. That is a point we have to document. That is something very important. और मेरा ख्याल में रेगुलेटर को इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। और ये हाई का क्या मतलब है? As high as 100%. So you do have platforms available. You do have technology जिसमें आपकी सेंसिटिविटी जो है वो 100% है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्पेसिफिसिटी टू दैट लेवल। स्पेसिफिसिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है ब्लड बैंकिंग और ब्लड टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्पेसिफिसिटी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपका प्रोडक्ट का जो है ना वो जाया होता है। सेंसिटिविटी अगर आपकी हाई है तो प्रोडक्ट जाया होता है। स्पेसिफिसिटी का कोई थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लें एट द एक्सपेंस ऑफ सेंसिटिविटी तो वो ब्लड बैंकिंग एनवायरनमेंट में प्रेफरेबल होता है। ठीक है जी। अब how to prove that you do have a 99.5% sensitivity, the technology that you are going to procure and to get is of this sensitivity, कैसे पता चलेगा? इसको पता चलाने का तरीका ये है कि you have products which you need products, you must have the products, you must procure the products जो कि traceable होंगे उन standards को, और वो क्या है? वो आपके जो है वो sensitivity and linearity panels होंगे। ठीक है जी। सीरोलॉजिकल कंट्रोल्स होंगे, क्वालिफिकेशन पैनल्स होंगे, वेरिफिकेशन पैनल्स होंगे, WHO के भी हैं, पॉल एरलिख, NIBSC,
NIH सबके पास हैं, कमर्शियल भी हैं अवेलेबल, ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव है बट दे आर अवेलेबल। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नेशनली अवेलेबल नहीं है, मगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई एफर्ट करे तो मिल जाते हैं। आई हैव बीन यूजिंग मिनिमम पोटेंसी सीरा भी NIBSE का यूज करती रही हूँ उस पिछले इदारे में भी, और अभी भी आई हैव थिंग्स जो के प्रूव करती हैं, इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। So these are the tools that you require to prove that you have procured reagents which meet the WHO requirement of minimum sensitivity of 99.5%, minimum sensitivity 99.5 in case of testing for TTIs. अब आ गया क्वेश्चन, लोग कहते हैं ये मैन्युफैक्चर कंट्रोल, दिस इज अ बिगर मिसकॉन्सेप्ट। देखिए मैन्युफैक्चर कंट्रोल जो साथ देता है उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद QC नहीं होता, ये बात पहले से बांध दे, there's a conflict there, और उसका मकसद ये नहीं है। उसका मकसद क्या है? मैन्युफैक्चर कंट्रोल्स आर प्रोवाइडेड टू ड्राइव और कैलकुलेट द कट ऑफ वैल्यू। आपको कट ऑफ वैल्यू को करने के लिए मैन्युफैक्चर कंट्रोल ही देगा ना, वो मैन्युफैक्चर कंट्रोल कहलाता है। अगर आपने कोई भी प्लेटफॉर्म किया हुआ तो आपको ये बारल प्रूव करना है, एक कट ऑफ रखनी है कि जी ये SCO लेवल, सैंपल टू कट ऑफ रेशियो जो है वो 1 के ऊपर है तो मैं उससे ऊपर वालों को पॉजिटिव लूंगा या रिएक्टिव लूंगा, और उससे नीचे वालों को मैं नेगेटिव लूंगा, या मैं 0.9 वालों को लूंगा, या मैं 1.2 वालों को लूंगा। तो वो जो कंट्रोल्स होते हैं मैन्युफैक्चर के, वो सैंपल टू कट ऑफ रेशियो के लिए जो थ्रेशोल्ड होता है उसको डिफाइन करने के लिए होते हैं। दे आर नॉट देयर फॉर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। So many people would say कि जी हमने वो कंट्रोल्स लगाए हैं जो मैन्युफैक्चर के साथ है, that doesn't mean anything, that doesn't mean anything, that does not mean कि आपने टेस्ट परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया। अगर आपने टेस्ट परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है तो आपको you need something else, and what do you need, that I'll show you in यहाँ पे। okay, अगर आपने फर्स्ट टाइम जो है वो प्लेटफॉर्म खरीदा है, कोई नई टेक्नोलॉजी पे स्विच किए हैं, कोई रिएजेंट आपने नए लिए हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई ELISA कर रहा है और वो ओपन सिस्टम है और वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेंडर से ले लेता है, तो उसको बारल मेथड वैलिडेशन से ये प्रूव करना है कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है। तो उसकी सेंसिटिविटी के लिए ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं या वो टूल्स हैं या वो QC की चीजें हैं जो कि कमर्शियली भी अवेलेबल हैं, और जैसे मैंने कहा कि यूजुअली तो नेशनल लेवल के ऊपर अवेलेबल होती हैं, हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है इस तरह का, इंडिविजुअल लोगों को मंगवाने पड़ते हैं। तो वो क्या करेंगे, तो आपको सीरोलॉजिकल कंट्रोल और परफॉर्मेंस पैनल्स चाहिए। तो आप टेस्ट प्रिसीजन और नैट की प्रिसीजन जो भी TTIs के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसके लिए आप तो उसको प्रूव करेंगे, मेथड वैलिडेशन करेंगे, उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एंड लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड ऑल दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड उसको प्रूव करेंगे। सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच यू नीड एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्टार्ट ऑफ टेस्टिंग व्हिच इज कॉल्ड मेथड वैलिडेशन। ओके, आपने मेथड वैलिडेट कर लिया, अब आपने कंप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपका रेगुलेटर कहता है कि जी ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आज पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी वाले इस टर्म में लिखना शुरू कर दें कि आज आपने जो TTI की टेस्टिंग की हुई है उसका जो है आप हमें प्रूफ दिखाएंगे कि वो 99.5 सेंसिटिविटी है उसकी, तो कैसे प्रूव किया जाएगा? दुनिया ऐसे ही करती है, एंड आई होप कि हम भी किसी वक्त में ऐसे करना शुरू कर देंगे। तो वो क्या होगा, देन यू विल हैव टू प्रूव कि मैंने जो है वो सीरोलॉजिकल कंट्रोल्स थे, मेरे सेंसिटिविटी पैनल्स थे और मैं कंप्लायंट हूं और मैंने उसको डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है, ठीक है, और मैं उनको बता रहा हूं कि मैंने ये काम करके ये प्रूव किया है कि मैं कंप्लायंट हूं आपके स्टैंडर्ड के साथ, कि आपने कहा 99.5 सेंसिटिविटी वाला आपने सिस्टम रखा हुआ होना चाहिए TTI इसको स्क्रीनिंग के लिए, तो ये देखिए कि मेरे पास मौजूद है उसका एविडेंस। दैट इज व्हाट यू वुड नीड। नाउ व्हाट यू नीड फॉर डेली QC के लिए, कि आज के दिन जो मैंने टेस्ट TTIs का किया है उसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये बिल्कुल इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस A1 है। हाउ डू यू प्रूव दैट? यू प्रूव दैट बाय एम्प्लॉइंग सर्टेन टूल्स। तो वो उसमें क्या है कि आप उसमें ये वो चीजें होती हैं आप जो डेली QC के अंदर देख रहे होते हैं। लॉट एक्सेप्टेंस, अगर लॉट आपका चेंज है तो किस क्राइटेरिया पे एक्सेप्ट करना है, कोई ट्रबल शूट है उसको करना है, कैलिब्रेशंस करनी है, डेली QC करना है, उस QC डाटा को एनालाइज करना है, आपने डेली अपने टेस्ट की एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देखनी है, या एट द टाइम अगर आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपने उसकी जो है वो एनालिटिकल एक्यूरेसी प्रूव करनी थी, उस वक्त भी आपने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की, रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट किया या और एक्सपेरिमेंट किया। रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट अगर उस वक्त आप एनालिटिकल एक्यूरेसी के लिए करते हैं तो उसका भी एक तरीकाकार है, यू मस्ट नो दैट, और उसका एक प्रूफ अवेलेबल होना चाहिए कि जब हमने लिया
हमने इसकी एनालिटिकल एक्यूरेसी इस तरह प्रूव की। देन इंटरसाइट कंपैरिजन, अगर आपकी मोर देन वन साइट्स हैं, फिर देन न्यूक्लिक एसिड अगर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो कंटेमिनेशन तो नहीं है, खामखा आप डोनर को जो है वो उसका पीस ऑफ माइंड खराब कर दें अगर आपकी कंटेमिनेशन है, और अपनी कॉस्ट भी इतनी ज्यादा कर दें, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा आपको। तो दिस इज डेली क्यूसी इश्यूज। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, देखें ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये वो चीजें हैं जो एसेंशियली रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास ये नहीं भी अवेलेबल है तो बेयर मिनिमम ये है, और ये नंबर 1 इसलिए इंडिकेट किया है कि ये वो एसेंशियल टूल्स हैं जो आपको डेली रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, डेली रन कंट्रोल करना है आपने, क्यूसी डाटा को एनालाइज करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, और नेट जो है उसको कंटामिनेशन को मॉनिटर करना है और टेस्ट की प्रिसीजन मॉनिटर करना है। उसके लिए आप क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ये चीजें रिक्वायर्ड है। थर्ड पार्टी कंट्रोल्स चाहिए आपको चाहे वो सीरोलॉजी का है, इम्यूनोएसे का है या नेट का है, यू नीड दैट। अगर आप खुद एनालाइज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके, अब मैं जाते जाते लास्ट में जो कपल ऑफ स्लाइड्स हैं, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ वीक एरिया है जिसको ना तो हम ट्रेनिंग के दौरान बता पाते हैं। वैसे बाय द वे मेरा अपना जाती ख्याल है कि हम जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, वो पता नहीं हम क्या थ्योरियां पढ़ा रहे होते हैं। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो पता चलता है कि जो थ्योरियां पढ़ के रहे हैं वो तो एप्लीकेशन ही उसकी जो है ना वो इसके ऊपर हमें नहीं आती। तो जो हमारा काम होता है वो उसकी एप्लीकेशन सिखाना होना चाहिए, और वो उस एप्लीकेशन क्या चीज है कि डेली जो है वो किस तरह आपने वो तरीकाकार इख्तियार करना है जिससे ये आप अचीव कर सकें और आपका काम जो है वो एज ए एक्सपर्ट जो है और एज ए कंसल्टेंट चले। तो इसमें मैंने कहा है कि जब भी प्रोक्योरमेंट की साइड पे कोई हो तो उसको प्रोक्योरमेंट क्राइटेरिया या स्पेसिफिकेशन बनाने आनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए भी आपको स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस नेशनल और इंटरनेशनल को रेफर करना पड़ता है, उसका पता होना चाहिए। और जो स्पेसिफिकेशन आप डिफाइन करेंगे वो आपकी अपनी नीड्स के मुताबिक होगा। AFIT हो या कोई और कैटेगरी A+ का हो, और आपका जो एक हॉस्पिटल ब्लड बैंक छोटा सा है, उनकी दोनों की नीड्स हो सकता है एक जैसी ना हो। ठीक है, बट ऑब्वियसली देयर सर्टेन रेड एरियाज क्वालिटी का जिसको नहीं किया जाता, क्रॉस नहीं किया जाता। तो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन बनाना इज द की। ये परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन जो है वो क्लियरली आपको लिखी आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर नीड्स, जो आप आपकी नीड्स के मुताबिक हो, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड क्वालिटी, कि हमारी ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है और इस क्वालिटी की चीज हमें चाहिए। दैट हैज टू बी रिटन डाउन। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव तरीका होना चाहिए, सैंपल्स की इवेल्युएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर वो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए एंड सपोर्टेड बाय सम स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन। ठीक है, तभी आप उस सैंपल को जो है अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सकेंगे, और तभी आप जो है किसी को आंसर दे सकेंगे, और तभी आप कह सकेंगे। वरना तो एनीबडी कैन गो एंड से कि जी कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे ये किया उन्होंने वो किया। द मोर यू आर क्लियर कि व्हाट यू नीड एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट, द बेटर इट इज कि आप अपनी उसमें जो है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं और आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो जो टेस्टिंग ऑन ग्राउंड, अगर आपके पास सैंपल आ गया तो उसको क्या तरीका है? आइडियली वो ब्लाइंड स्टडी होनी चाहिए, रिएजेंट्स की लेबलिंग से रिमूव कर देना चाहिए और उसको अपनी कोडिंग कर दें, वाइल्स को जिस तरह हम रूटीन में उसको हम करते हैं, और उसको अगर हमें टास्क दिया जाए या जिस तरह पहले हम टास्क करते थे, और उसको फिर आपने लॉट टू लॉट कंसिस्टेंसी को भी आपने प्रूव करना होता है। फिर हाउ द रिएजेंट्स विल बी टेस्टेड, प्रोटोकॉल डिफाइंड, लिखा कंसेंसस के साथ एंड सपोर्टेड बाय सम स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। और फिर अगर उसके लिए कोई टूल्स या कोई स्टैंडर्ड्स या रेफरेंस रिएजेंट अवेलेबल करना है, उसको करना चाहिए, या उसको कम से कम स्टेट कर देना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपके पास 10 एंटीसीरा आ गए हैं, उसकी वैल्यूएशन करनी है, तो आप किस क्राइटेरिया पे वैल्यूएट करेंगे? आप कहेंगे मुझे NIBSC का जो है वो पोटेंसी सीरा चाहिए, उसको मैं पैरेलल टेस्टिंग करूंगा, और जो एंटीसीरा जो है वो उसके ऊपर फिट आ जाएगा, मैं उसको फिट कर दूंगा जो उसकी क्राइटेरिया मीट कर लेगा। अदरवाइज कोई हवा में तो ये बात नहीं हो सकती कि इसकी शक्ल मुझे देखने में अच्छी लग रही है तो उसको मैं फिट कर दूं। ठीक है, लॉबी तो बहुत होती है, हर कोई अपने आगे पॉइंट बताता है, बट हमारा काम एज ए प्रोफेशनल होता है कि हम उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से करें। देन जो टेक्नोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हर किस्म के काम हो सकते हैं वेंडर्स की तरफ से, तो आप टेक्नोलॉजिस्ट कौन होगा, उसका तरीका कार क्या होगा, वो डिफाइंड होना चाहिए, उनकी टेक्निक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, और फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी को चेक करें कि एक से दूसरे बंदे तक वो रिप्रोड्यूसिबल है रिजल्ट्स के नहीं। Okay, in the end, to conclude my talk, I would say
कि reliability of blood testing and blood bank cannot be ensured without knowing and using reagents and tools required for quality assessment. All types of reagent used in blood banking and transfusion services has a bearing on the patient safety and efficacy of blood products. जैसे मैंने कहा कि that is very, very important aspect. The policies about testing, selection, evaluation, and daily use of the reagent is a scientific process जो कि responsibility है हमारी जो blood bankers हैं, pathologist हैं, जो इंचार्ज हैं, ठीक है, जो उसके operations के इंचार्ज हैं और जिनकी ये जिम्मेदारी है. And obviously industry is a very good source of staying informed क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है, आपको आके बता रहे होते हैं. But obviously you should have multiple sources. आपके प्रोफेशनल सोर्सेज भी होने चाहिए, इंडस्ट्री भी होना चाहिए और भी होने चाहिए. और जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो बड़ी एसेंशियल है. और ये उसी वक्त आप उसको अपनी सेकंड हैबिट बना लेंगे कि अगर आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे. So thank you very much. This was all I had to say about the quality in जो हमें tools चाहिए और reagents. So anyone who has posted any question, I'll look into that. And in addition, जो हमारे organizer manage कर रहे हैं वो फिर unmute कर देंगे उसको अगर question हो तो. One thing more, I have actually designed a little performer. Google के ऊपर ये है, तो उसमें आप अगर interested हो कि ये किस किस्म की services आपका gap है, तो we can look into that कि हम उसमें आपको inform कर सकें बेहतर. हम क्या करते हैं, आप हमारे साथ, हम आपके साथ experience share कर दें और जहां से हम लेते हैं या जो चीजें यूज करते हैं वो आपको रेफर कर दें, तो उससे आपका जो है वो काफी हद तक जो है वो फायदा हो जाएगा. सिमिलरली मैंने बहुत सारी चीजों को टच नहीं किया इसमें, एंड ऑब्वियसली वो इटसेल्फ बहुत बड़े टॉपिक बन जाते हैं, लेकिन we'll go and then we'll have test performance के ऊपर some other time. So if anyone has any question, please raise hand or post a question so that I can answer that. Okay, I received one question saying, how is it possible CLIA in Tehsil level hospital? देखें, पब्लिक सेक्टर में तहसील डिस्ट्रिक्ट जो भी लेवल है उसके लिए हमारे रेगुलेटर, आई नो मैडम शहनाज जो पीबीटीए को हेड कर रही हैं, शी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ कंसर्टेड एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स कि हमारी स्क्रीनिंग जो है वो बेहतर हो जाए. शी हैज फ्यू थिंग्स ऑन हर कार्ड और मेरी उनसे फ्रीक्वेंटली बात होती रहती है, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि वो जो एफर्ट्स कर रही हैं. और उनके एफर्ट का जो बड़ा वो है, फोकस है, वो यही है कि हम पब्लिक सेक्टर में इसको क्लाया को वाइबल कर लें. तो मेरा ये ख्याल है कि वो तो जो कर ही रही हैं, आपको मैं थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट दे दूं, वो ये है कि अगर डोनर टेस्टिंग जो है वो सेंट्रलाइज कर दी जाए, फॉरगेट अबाउट कि आपने प्रोसेसिंग किधर कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट कि आप सीरोलॉजी क्या कर रहे हैं, इम्यूनोहेमेटोलॉजी ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं, वो तो प्रैक्टिस डेली के होते हैं. लेकिन अगर डोनर टेस्टिंग जो है उसको सेंट्रलाइज किया जा सकता है, उसके लिए एफर्ट थोड़ा सा ये करने की जरूरत होगी कि आप इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बजाय थोड़ी प्लान ट्रांसफ्यूजन के ऊपर जाएं. इसका ये मतलब नहीं कि इमरजेंसीज होंगी नहीं, इमरजेंसीज होती हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है, ज्यादा रूटीन ट्रांसफ्यूजन होती हैं. तो जब वो प्लान ट्रांसफ्यूजन होनी शुरू हो जाएंगी तो आपका डोनर सैंपल जो है वो अवेलेबल होगा कि उसको उठा के किसी जगह ले जाके सेंट्रल स्क्रीनिंग की जाए. उसके बहुत फायदे हैं. उसके लिए एक और बहरहाल जरूरत चीज भी पड़ेगी, वो ये है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग की प्रोविजन हो. लेकिन आजकल जो आपके पास टेक्नोलॉजी टूल्स अवेलेबल हैं उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है. ये प्रोग्राम फौज में जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रलाइज नेट स्क्रीनिंग का, तो उसमें हमने जो सेंटर बनाए थे उसमें सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच पेशावर, क्वेटा, मलीर एंड एबटाबाद बनाए थे, ताकि वो ज्योग्राफिकली अपने अराउंड जो हॉस्पिटल्स हैं वहां से डोनर सैंपल लें और उसके बाद वहां पे उन सेंटर पे हो जाएं, क्योंकि छोटे छोटे ब्लड बैंक्स के लिए वाइबल नहीं है इतना बड़ा इक्विपमेंट रखवाना और रिएजेंट्स को प्रोक्योर करना. सो दैट इज द वे फॉरवर्ड सोल्यूशन जो हमारे पास एक है. सेकेंडली सोल्यूशन वही है जो कि इंटरनेशनली प्रूवन है कि रीजनल सेंटर्स हो, रीजनल सेंटर्स में जो कलेक्शन हो वॉलंटियर से और वो जो हॉस्पिटल्स हैं उनको वो प्रोवाइड कर सके.
तो वो तो आइडियल मॉडल है जिसकी तरफ हम जर्मन गवर्नमेंट के इश्तराक से काफी अरसे से जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई होप के किसी वक्त में वो हो जाए। और वैसे बाय द वे पब्लिक सेक्टर के पास तो ज़ाहिर फंडिंग एक खास सोर्स से आनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ब्लड बैंक्स के लिए हमारी जो पीफस सॉल्यूशंस का मेन एजेंडा है वो एक्चुअली यही है कि क्या हम क्लाया एंड विद और विदाउट नेट टेस्टिंग हम प्राइवेट सेक्टर को जो छोटे लेवल के हैं उनको हम प्रोवाइड कर सकें। और उसके लिए ब्लड एस्टेब्लिशमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कम्प्लीटली हमने बनाया हुआ है ताकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का इशू ना हो, और वो भी एक सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग के हिसाब से कि उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं और क्या होना चाहिए, तो वो जो है उनको एक्वायर करने से बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम वॉल्यूम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, बट नेवरदलेस जितना है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप के जो आज की गुफ्तगू थी वो आपके लिए यूजफुल होगी। फीडबैक फ्रॉम यू विल बी अवेटेड ताकि हम आइंदा अपने सेशंस को और बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज।